So everyone join your hands, close your eyes and let's repeat Gayatri Mantra with me. Om Bhur Bhuvah Svah Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Okay. Now open your eyes, everyone. Okay. Tell me what we have done in the previous class. क्या किया था previous class में हमने? Write in the chat box. Yes, what we have done in the previous class? Chapter finish. Yes. New start. Very good. आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, लास्ट में हमने मेंटल मैथ और थिंक स्मार्ट की थी. ठीक है, वंस और टेंस के साथ. So today we will start our new chapter with new energy. Okay, let's start today's chapter. Today's chapter is your last chapter of term 1. Okay, and the chapter name is data handling. It's a data. Okay, now tell me what is the meaning of data? What is the meaning of data? Data का क्या मतलब होता है? Write in a chat box. What is the meaning of data? Yes. Numbers. Good morning, Gruhi. Tell me what is the meaning of data? Count number is not a correct option. Total. But total, okay, total करके क्या? What about the total? थोड़ा सा और इसको elaborate कीजिए. Only Arifa is replying me. Why? What about the others? Why no? Why nobody is replying apart from Arifa? Yes, Divyaniba, Kyara, Vani, Pratham, Rushit, Nick, Shivansh. What is the meaning of data? Data. What is the meaning of data? Information. Very good, Arifa. Very good. The meaning of the data is information. Okay, Shivansh. The meaning of the data is information in numbers. है ना? Data का आंसर meaning होता है numbers में information देना. Clear? Now we will understand कि numbers में information कैसे देते हैं. ठीक है? See, the meaning of the data is information in numbers. ठीक है? आपको कोई भी चीज दी जा रही है उसको numbers में आप inform करें. That is the meaning of data. Clear? ये सबको समझ आया? Yes or no? Write in a chat box. The meaning of the data is to give the information in numbers. Clear? Now, what is data handling? The meaning of the data handling is to collect the data, organize the data and represent the data in such a way that it will helpful to others. देखिए, again I am repeating the statement. The meaning of the data handling is to collect the data, organize the data and represent in such a way that it will be helpful to others. See, now we will clear this statement one by one. See, the meaning of the data handling is to collect the data.
यानी कि डेटा कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की हो सकती है। तो सी हमने कोई डेटा अपना कलेक्ट किया, ठीक है, सपोज मुझे इसका एक डेटा बनाना है, तो आई विल कलेक्ट माई डेटा। मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। नाउ टेल मी in this how many white blocks are there? In this how many white blocks are there? Yes. Sure? Okay, tell me how many red blocks are there? How many yellow blocks are there? And how many blue blocks are there? Yes, tell me. See, in this, Arushi, I did not say to open any page number at yet. See, in this, it is very difficult to tell the number of blocks. Difficult है कि नहीं है, जिस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है, क्या ये डिफिकल्ट है आपके लिए इसमें से फाइंड आउट करना कि कितने इसमें से व्हाइट है, कितने रेड है, कितने येलो है और कितने ब्लू है? यस और नो? समझ आया? तो सी, अब आप वन बाय वन समझेंगे। द डेटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट द डाटा। डेटा हैंडलिंग का जो पहला स्टेप होता है उसमें होता है डेटा को कलेक्ट करना। हमने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइज द डाटा। अब हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। सी, नाउ वी विल ऑर्गेनाइज अवर डेटा। Okay. Now, is this easy for you to tell the number of blocks? Yes or no? Yes, because this time this data is in organized form. पहले जो आपको डाटा मिला था वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था। ब्लैक ब्लू कहीं भी है, रेड कहीं भी है, व्हाइट कहीं भी है ना, येलो कहीं भी। बट ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ऑर्गेनाइज कैसे किया? रेड को अलग बंच बनाया, ब्लू का अलग बंच बनाया, व्हाइट का अलग बंच बनाया और येलो का अलग बंच बनाया। तो देखिए, डेटा हैंडलिंग इज टू कलेक्ट द डाटा। सबसे पहले हमने अपना डाटा कलेक्ट किया, ओके, देन ऑर्गेनाइज द डाटा। उसके बाद हमने डाटा ऑर्गेनाइज किया, एंड नाउ थर्ड इज रिप्रेजेंट द डाटा। अब हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, टेल मी हाउ मेनी रेड ब्लॉक्स आर देयर? Yes, how many red blocks are there? Two. How many white blocks are there? Yes. 5. How many blue blocks are there? 1. And how many yellow? Clear? Now see, if someone, suppose Pushpendra comes at my home, है ना, Pushpendra comes at my home and he said, ma'am, I want to play with this, है ना। मान लीजिए पुष्पेंद्र मेरे घर पर आता है और बोलता है मुझे इनके साथ खेलना है, ठीक है।
तो सपोज ये तो बहुत कम नंबर्स हैं, ठीक है। अब नाउ पुष्पेंद्र will ask me, ma'am, in this how many white, how many red, how many blue and how many white blocks are there? इनमें मैम कितने white हैं, कितने blue हैं, कितने yellow हैं और कितने red हैं? I have a two options, या तो मैं हर बार काउंट करूं, है ना, या मैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज भी करूं। चलिए ऑर्गेनाइज भी नहीं किया, लेकिन मैं इस तरह का टेबल बना के रखूं कि सी इसमें रेड 2 है, व्हाइट 5 है, ब्लू 1 है और येलो 5 है। तो ये चीज देखिए, ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये मेरे अलावा क्या उन बच्चों के लिए भी नहीं इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि अब इस बंच में कितना कितना कौन कौन सा ब्लॉक है? यस और नो? Again, I am repeating the sentence. The meaning of the data handling is to collect the data. Okay? Then organize the data. Then represent the data in such a way that it will be helpful to others to understand. समझ आया सभी को? इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टुडे इज योर बर्थडे, ठीक है, and mama gave you a bunch of chocolates in which you can see some 5-star, some Kit Kat and some Cadbury, ठीक है। आपका बर्थडे है आज और मम्मा ने आपको एक पूरा चॉकलेट का पूरा बॉक्स दिया है जिसमें कुछ 5 स्टार है, कुछ नो पेज नंबर, कुछ किट कैट है और कुछ कैडबरी है, ठीक है। अब आप स्कूल गए, ठीक है, अब स्कूल गए तो आपको नहीं पता उसमें कितनी कैडबरी है, कितनी किट कैट है और कितनी 5 स्टार है। तो देखिए, जब आपको पता नहीं है तो मान लीजिए जो चीज आपके पास कम है आप उधर देंगे जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कम है, ठीक है। मान लीजिए कैडबरी ज्यादा है तो आप कैडबरी किसको देंगे? बच्चों में देंगे। और अगर किटकैट कम है तो आप टीचर्स को दे देंगे, करेंगे ना ऐसे आप। बट कब करेंगे? जब आपको पता हो कि हाउ मेनी किटकैट, हाउ मेनी कैडबरी एंड हाउ मेनी 5 स्टार यू हैव, क्योंकि डेटा नहीं है आपके पास, बस आपके पास कलेक्ट है डेटा, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड, मम्मा क्या करती है, मम्मा आपको सारी चॉकलेट्स अलग अलग बंच बना के दे देती है कि ये 5 स्टार का पॉली बैग है, ये किटकैट का पॉली बैग है और ये कैडबरी का पॉली बैग है, ठीक है। अब देखिए, अब मम्मा ने आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर दिया, जैसे मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर दिया अलग अलग करके, ऐसे मम्मा ने आपको चॉकलेट जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में दे दी। अब आप टीचर के पास जाओगे, ठीक है, तो देखिए डाटा किसने कलेक्ट किया? मम्मा ने, उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया और फिर मम्मा ने उसे रिप्रेजेंट किया कि ये बंच किटकैट का है और इसमें इतनी किटकैट है, ये बंच 5 स्टार का और इसमें इतनी 5 स्टार है, ये बंच जो है कैडबरी का है और इसमें इतनी कैडबरी है, ठीक है। बट अब देखिए, मम्मा का तैयार किया हुआ डाटा आपके लिए भी हेल्पफुल हुआ, आप जाके टीचर को बता पाएंगे कि मैम ये मेरे पास इतना इतना है, टीचर के लिए भी हेल्पफुल हुआ, टीचर को भी पता चल गया, है ना। तो अब सी अनऑर्गेनाइज डाटा, पहले मम्मा ने अपना कलेक्ट किया डाटा, डाटा क्या था? मम्मा का चॉकलेट। फिर मम्मा ने उसे ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज अलग अलग उसे सेपरेट कर दिया। फिर मम्मा ने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि दैट इट विल बी हेल्पफुल टू अदर्स, मीन्स आपके लिए भी और आपके टीचर के लिए भी। तो समझ आया डेटा हैंडलिंग? यस और नो? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस। Yes. Okay, Shivansh. Okay, Shivansh. If it's so beautiful, then tell me where do you see the data handling in your daily life? चलिए बताइए शिवांश, अपनी डेली लाइफ में आप डेटा हैंडलिंग कहाँ यूज कर रहे हैं? Where do you use data handling in your day-to-day life? Yes, everyone, अपनी डे टू डे लाइफ में आप कहाँ डेटा हैंडलिंग यूज कर रहे हैं? राइट इन अ चैट बॉक्स।
पुष्पेंद्र प्लेइंग में कैसे यूज कर रहे हैं बेटा, प्लीज इलेबोरेटेड, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए मुझे कि प्लेइंग में हम कहाँ यूज कर रहे हैं। राइट इन अ चैट बॉक्स। Nobody knows where do you use data handling in your daily life. Share with me, friends. Share lunch. Sharing. It's a sharing, beta. Shiva, sharing is a different thing. Yes. Blogs. पुष्पेंद्र, हाँ देखिए पुष्पेंद्र, अगर आप अपने ब्लॉग्स को पुष्पेंद्र अलग अलग सेपरेट रखते हैं, यस और नो? डू यू कीप योर ब्लॉग्स? नो, तो फिर वो डेटा हैंडलिंग नहीं हुआ ना बेटा। आई एम सेइंग वेयर डू यू यूज डेटा हैंडलिंग? बुक, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बुक। सी, आप लोग क्लास में मैथ्स करते हैं, साइंस करते हैं, इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं, तो आपने देखा होगा आप मैथ्स की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स अलग रखते हैं, है ना? हिंदी की टेक्स्ट बुक, नोटबुक अलग रखते हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, नोटबुक अलग रखते हैं ना, सेपरेट सेपरेट रखते हैं। ऐसा तो नहीं है मैथ्स के साथ एसएस की नोटबुक रख देते हैं। एक्सीलेंट चार्वी, एक्सीलेंट चार्वी। सी, क्लोथ में, सी हम इंडियंस की ना एक नेचर होती है ना, कि देयर आर थ्री कैटेगरीज इन आवर क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उसके अंदर हम कौन से क्लोथ रखते हैं, जो जनरली घर पहनने वाले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं घर पहनने वाले, है ना, जो मतलब हम घर में हैं तो पहनते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी के क्लोथ्स कौन से होते हैं, मान लीजिए हम यहीं कहीं आस पड़ोस में गए हैं या कोई मार्केट गए हैं तो हम पहनते हैं। और जो थर्ड नंबर के क्लोथ्स होते हैं वो तो हमारे बहुत स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, है ना, जो हम कहाँ पहनते हैं, कोई फंक्शन में पहनते हैं, है ना, जब हम पहचान में ही नहीं आते। यस और नो? टेल मी। यस, है ना, देयर आर 3 कैटेगरीज इन क्लोथ्स ना। वो जो पार्टी वाले क्लोथ्स होते हैं वो तो बहुत बहुत कम पहनते हैं हम, है ना, लेकिन जब हम पहनते हैं तो मैम पूछेगी, अरे आरिफा ये तुम हो, अयान ये तुम हो, ऐसा होता है। तो सी, क्लोथ में कैटेगरी है, हमने क्लोथ में भी अपनी एक डेटा हैंडलिंग यूज कर रखी है। यस, इसके अलावा टॉयज में ऑफ कोर्स अगर आप टॉयज सेपरेट रख रहे हैं तो आप उसमें अपनी डेटा हैंडलिंग यूज करते हैं। जैसे आप किचन सेट का अलग एक ब्लॉक बना, आपने बॉक्स बना रखा है, ब्लॉक्स का अलग एक बॉक्स बना रखा है टॉयज में, ऑफ कोर्स फ्रूट्स में। वेरी गुड। ओके, नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द वेजिटेबल मार्केट? मोरबी की वेजिटेबल मार्केट में सब जाते हैं, यस और नो? यस, टेल मी। सबने देखा है ना मोरबी का वेजिटेबल मार्केट? तो आपने देखा होगा कि एट द आउटसाइड ऑफ दिस मार्केट देयर इज अ शॉप ऑफ फ्रूट्स। एक फ्रूट की शॉप है, देखा आपने? मोरबी में जैसे हम एंटर करते हैं वेजिटेबल मार्केट में तो बाहर एक फ्रूट की शॉप है जो मेन इधर मार्केट है। He did not say any page number, beta. Why are you disturbing whole class, beta? Yes, आपने देखा है वेजिटेबल मार्केट में बाहर की तरफ एक फ्रूट सेलर है, ठीक है। अब सी, अब यहाँ से हम समझते हैं डेटा हैंडलिंग। फ्रूट सेलर सबसे पहले अपना डेटा कलेक्ट करता है। उसका डेटा क्या है, उनका डेटा क्या है, कलेक्ट करना। जितने भी फ्रूट्स उन्हें आज मिले हैं सेल करने के लिए, पहले वो इन्हें कलेक्ट करते हैं, है ना। उसको कलेक्ट करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर वो उसे ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, पपाया एक तरफ रख देते हैं, एप्पल एक तरफ रख देते हैं, है ना, कीवी एक तरफ रख देते हैं, पाइनएप्पल एक तरफ रख देते हैं। बनाना तो वो अक्सर हैंग कर देते हैं, बनाना अक्सर देखना अपना हैंग कर रखा होता है। बनाना एक उनका अपना एक स्टाइल है, बनाना हैंग करे होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपना डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर दिया और उसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप गए, अब आपके लिए कितना इजी हो जाएगा ये पहचानना कि आपको उसमें से बनाना चाहिए, पपाया चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए या क्या चाहिए, है ना। और सपोज करिए अगर यही फ्रूट सेलर
आपको सब कुछ ऐसे सारे फ्रूट मिक्स कर दो और बोले इसमें से क्या चाहिए, तो आपके लिए भी मुश्किल होगा उसमें से फाइंड आउट करना। समझ आया? यानी डेटा हैंडलिंग उसका तैयार किया था, लेकिन देखिए सबके लिए हेल्पफुल हो गया। जो भी कस्टमर आएगा उसके पास, वो दूर से ही बता देगा कि ये वाला फ्रूट चाहिए। यस और नो? क्लियर? समझ आया सभी को? चलिए, इसके अलावा और डेटा हैंडलिंग कहाँ यूज होती है? और डेटा हैंडलिंग कहाँ यूज होती है? मम्माज किचन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा हैंडलिंग। मम्मा देखा है, पल्सेस अलग रखती हैं, स्पाइसेस अलग रखती हैं, देखा है मम्मा को? मम्मा मम्मा की किचन में हर चीज एक डेटा हैंडलिंग ही है। सब कुछ मम्मा, वासन ऑफ कोर्स, यूटेंसिल्स कैसे रखती है मम्मा? डिशेज अलग रखती हैं, है ना? फिर ग्लासेस अलग रखती हैं, बॉल अलग अलग रखती हैं। सपोज मम्मा अगर रोज सारे यूटेंसिल्स, सारे वासन जो है एक साथ रख दे मम्मा, है ना, और फिर शिवांश को मिर्ची लग जाए, तो शिवांश क्या करेगा? कितनी जल्दी उसे, कितना मुश्किल होगा उससे उसमें से एक ग्लास ढूंढने में। बट मम्मा हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखती है, कंटेनर्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखती है ना? समझ आया? yes or no? ऑफ कोर्स बीन्स वेजिटेबल ही हो गए बेटा, वेजिटेबल में होता है। नाउ एनी डाउट इन डेटा हैंडलिंग? किसी को डेटा हैंडलिंग में भी कोई डाउट अभी तक? नो? ओके, then tell me, if you have no doubt, why data handling is important? अब आप मुझे बताइए, why data handling is important? डेटा हैंडलिंग फिर important क्यों है? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस, इजी। क्या इजी चार्ली? क्या इजी करने के लिए बेटा? टू मेक वर्क इजी, है ना? वर्क इजी करने के लिए। सी, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है ना? फाइन टू इजी। आपके स्कूल्स में देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अभी हर बच्चे का मैथ्स में कितना मार्क्स है, साइंस में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, है ना? अभी हर बच्चे का एक डेटा तैयार किया जाता है कि इस बच्चे का ये मार्क्स है ना, ये टोटल है, और उसके बाद वो आपको डेटा सेंड किया जाता है आपकी एप्स के अंदर। समझ आया? तो पहले वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। मैथ्स के नंबर मैथ्स की मैम के पास होते हैं, इंग्लिश के नंबर इंग्लिश की मैम के पास होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। बट एक डेटा बनाया जाता है कि इस बच्चे के ये सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स, है ना? और फिर वो डाटा आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करके दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा आपका जो मार्कशीट आती है वो पूरी की पूरी, उसमें आपके बच्चे की पूरी रिपोर्ट होती है। समझ आया? तो वो सोचिए कितने आप कह सकते हैं कितने ह्यूज स्केल पे वो काम होता है। ये तो बहुत छोटा है, 3, 5 नंबर, 1 नंबर, है ना? तो जितनी बड़े बड़े आप कंपनीज में जाएंगे वहां पे ये नंबर्स कुछ थाउजेंड्स में होते हैं। वहां पर डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू मेक वर्क इजी, है ना? टू मेक वर्क इजी, टू सेव टाइम, डेटा हैंडलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ आया सभी को? yes or no? Okay, now open the page number. Now open the page number, I think 191 है। वेट बच्चा, yes, page number 191। डेटा हैंडलिंग, yes, page number 191। Okay, now Rushali ba, Yes, ma'am. beta read out the page number 191 warm up of the data handling beta।
Okay, ma'am. See, everyone, you can see there are number of children, है ना? ये खुशहाली बा है, ये क्यारा है, ये मनन है, आई थिंक ये मनन है, ये चारवी है, ये मितवा है, ये नीव है, अभी देखो मुझे तो ये निक है, ये प्रथम है, ये कौन कौन है? चलिए, ये ध्वनि है ना? और ये कौन है? ये त्रिशा है। ठीक है, चलिए अब ये सारे बच्चे जो है यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। चलिए अब खुशहाली बा, लेट्स स्टार्ट बेटा। Yes, ma'am. बेटा लेट्स रीड आउट द वार्म अप बेटा। होमवर्क कैसे मैम? Okay, ma'am. ओके बच्चा। यस बेटा। Okay, ma'am. यस रीड आउट बेटा, रीड करिए ना पेज नंबर 191 को। Okay. मम्मी, रीड करवाने की थी। यस खुशहाली बा। Data head D. हैंडलिंग बेटा, हैंडलिंग बेटा, हैंडलिंग। Okay, ma'am. यस मैम, यस बेटा। आपका थोड़ा साउंड नहीं आ रहा। अच्छा मेरा साउंड नहीं आ रहा, अब आ रहा है मेरा साउंड? यस, खुशहाली में बेटा आप साउंड आ रहा है मेरा? यस। चलिए बोलिए, फटाफट रीड आउट करिए बेटा। There are 5 apples. Apple. apples. Apple. Next, There are 4 banana. very good. Which Fruit fruit do you do you see see the most in the basket? most in the basket? वेरी गुड। ये अभी हमारा फर्स्ट ए का लेक्चर फिर दोबारा होगा अभी 11:40 पे, तब हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। आपको केवल ये बताया गया कि इस वार्म अप में ये बास्केट में फ्रूट्स हैं और अब इन बच्चों को ये बताना है कि इस फ्रूट में कौन सा फ्रूट, कौन कौन से फ्रूट है। और इसी के साथ एक नया वर्ड पढ़ेंगे मोस्ट और लीस्ट। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, लीस्ट। ये आपका वार्म अप था, इसी को हम आगे अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे अटेंडेंस देंगे और उसके बाद आप लीव हो सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। Okay. मितवा प्लीज राइट ना चैट बॉक्स खुशहाली बेटा। चलिए मितवा। Yes, ma'am. मितवा इज एब्सेंट। ओके। कृषि अमृतिया, रानी बदराकिया, चारवी बावरवा। ओके बेटा। आरिफा ने आज थॉट बोला था, श्लोक आई थिंक। हितार्थ थॉट बोला था, हितार्थ। वेरी गुड बच्चा। ध्यानी भुरानिया, दिव्या भुरानिया,
सुशील पुरानिया, निहान बुद्धदेव, क्यारा डेट्रोजा, देवयानीबा गोहिल, खुशालीबा जडेजा, निक जटलोजा, त्रिशा, आरुषि, द्रुही, प्रथम, वनी, ईशान, शिवान, नीव, रुद्र, अयान, प्रांशु, शिवांश, चार्वी, मनन, पुष्पेंद्र और देव अघाड़िया। यस, ओके एवरीवन। तो हम लोग दोबारा अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, टिल देन बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।